Hi students, so I welcome you all in this session where I will be teaching you discharging of a capacitor in RC circuit, right? So how does a capacitor get discharged in a RC circuit? What are the properties of Q versus T, I versus T? What is the amount of heat generated? And all these small things required in a discharging RC circuit. Great. Before I start this session, let us discuss few things. First of all of you can follow me on my Unacademy profile ID, which is @avdesh.iitk, and my referral code on Unacademy is APSJEE. So you can use the code while purchasing any subscription to get an appropriate rebate. One thing, student, there is a nice biggest summer test carnival which is going on in the Unacademy system. तो इसमें Chemo Legends, Maths Wizards, Freezing Physics, Rank Boosters, Maths Boosters, Bear the Fear. So many things are going on for toppers who want to succeed with IIT JEE Advanced and JEE Mains. तो जो केमिस्ट्री के टॉप बच्चे हैं, जो मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं, जो फिजिक्स में टॉप करना चाहते हैं, वो अपने कैलेंडर को मार्क कर ले और इस टेस्ट कार्निवल में पार्टिसिपेट जरूर करें, राइट? Next is a bumper offer going on in IIT JEE division in Unacademy. If you take a subscription of 12, 24 or 3 months, you will get a rebate of 3 months, 4 months and 1 month respectively. तो बच्चे फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो so that you get an appropriate rebate और अपना कैलेंडर मार्क कर लो. There are these batches which have started in the month of June for students who are aspiring for JEE Advanced and Mains 21, 22, 23. सबके लिए batches start हुए. अपनी नीड के अकॉर्डिंग you can start attending the classes, and for that you need plus subscription, and for that you have to subscribe as soon as possible and use my referral code which is APSJEE while purchasing any subscription so that you get a proper rebate. मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 16th of June से, उसमें other than all the top educators, I am also there, and this is for all the students who are taking a drop and who are going to give the exam in the next year, that is JEE 2022 Mains and Advanced. ओके, छोटी सी बात, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो 12, 18 या 24 मंथ्स का मेरे रेफरल कोड APSJEE के साथ, तो आपको रिबेट मिलेगा 54, 62 और 67% का रिस्पेक्टिवली. और अगर आप 12, 18 और 24 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो you see their rebate percentages again 14, 30 and 34 respectively. क्या करना है? मेरा रेफरल कोड APSJEE जरूर यूज करना है. अच्छा, आइकॉनिक प्लस में क्या अच्छी चीजें हैं? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल गाइडेंस. स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, while you prepare for exam like IIT, all these things are very important for you to succeed. और अगर डाउट पूछना है आपको अनअकैडमी के ऐप के थ्रू, तो फटाफट क्वेश्चन की फोटो लेके डाल दो एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ इंस्टेंट सोल्यूशन. डूज एंड डोंट्स आपको पता है. एक अच्छी चीज, जो अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे 11 बजे होता है, उसमें loads of scholarships are available, right? And lot of lucky participants जो होंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है. So you can note that JBL speaker, Amazon vouchers, Fitbit मिल रहा है, iPad मिल रहा है, और स्कॉलरशिप तो मिलेगी, और भारत में आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है वो भी आप जज कर सकते हो. So kindly do that students as soon as possible, and you have to use my referral code. ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, that is APSJEE, right? So I left it as such so that I can remind you my code. Great. चलो बच्चों, let us start with the concept which is of discharging RC circuit. एक RC सर्किट में जब एक चार्ज कैपेसिटर को हम एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? I want to discuss this thing in today's lecture. So let me take a very simple case. Let's take a capacitor जिसके पास पहले से प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट का चार्ज है एंड कैपेसिटेंस इज C. और हमने क्या किया? थ्रू द हेल्प ऑफ अ स्विच I connected it across a resistor. इसको मैंने एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, and what I have done, I have closed the switch at t is equal to
0, t इज इक्वल टू 0 पे जाके हमने स्विच को क्लोज कर दिया। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ विल दिस सर्किट बिहेव। क्या होगा बेटा इसमें, देखो जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, कैपेसिटर के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है और सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में एक करंट फ्लो करवाएगा। इसका मतलब किसी जनरल पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं, दिस वाज एट t इज इक्वल टू 0, अगर आप t इज इक्वल टू t पे जाके देखोगे ना, तो जो ये Q0 था ये Q रह जाएगा, ये माइनस Q रह जाएगा, और इस सर्किट में आपको एक I चलता हुआ दिखेगा अक्रॉस द रेजिस्टर, यहां से वापस आ जाएगा I। रिमेंबर, जो मैंने ब्लू कलर से बेटा दिखाया है वो t इज इक्वल टू टी की प्रॉपर्टी है, और जो रेड से दिखा रहा हूं वो t इज इक्वल टू 0 की। रिमेंबर, चाहे I हो चाहे Q हो, बोथ आर फंक्शंस ऑफ टाइम, एंड आई वांट टू डिराइव दोनों के फंक्शन क्या होंगे, कैसे चार्ज और कैसे करंट वेरी करेगा। तो एक काम करते हैं, t इज इक्वल टू टी पर इस सर्किट में we can write two equations. What is the first equation I can write? The current which is coming out of this plate, right, where the charge is Q. So the current is responsible to decrease this charge Q. So I should write I is equal to minus ka dq by dt. Rate of decrease, minus क्यों लिया? Rate of decrease of this charge Q, that is basically the current, right? तो अच्छा, ये चार्ज एक साथ पूरा क्यों नहीं चला जाता? रेजिस्टर जाने नहीं देगा। रेजिस्टर विल ओनली लेट dq चार्ज टू मूव इन द सर्किट। ये प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को स्लो कर देता है, एकदम से चार्ज नहीं चलेगा। अगर रेजिस्टर ना होता तो पूरा Q0 माइनस Q0 को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देता और सर्किट में एक स्पार्क निकलता, एंड बाय वर्च्यू ऑफ स्पार्क कितना हीट निकलता? जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है हाफ Q0 स्क्वायर बाय C, वो पूरा का पूरा स्पार्क या हीट के फॉर्म में इमीडिएटली रिलीज हो जाता और कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता। बट बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टर इन द सर्किट, दिस विल नॉट हैपन नाउ। This discharging will be gradual now. So first I can write minus dq by dt, and second equation that I can write is t is equal to t पर जितना वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है ऊपर से, उतना ही वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। These two points are equipotential and these two points are also equipotential. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसका है वही इसका है। What is the potential drop of capacitor from left to right? कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा? Q by C आएगा। ये Q by C चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्रॉस से डबल क्रॉस के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप। तो नीचे अगर मैं रेजिस्टर को देखूं तो क्रॉस से डबल क्रॉस के बीच में करंट I आगे जा रहा है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? इट इज बेसिकली I into R. Now from these two equations, if I want, I can derive Q as function of time. कैसे डिराइव होगा बच्चे? आपको I की वैल्यू क्या लिखनी है? माइनस dq by dt. So by first and second equation, I can say Q by C is equal to R multiplied by I, which is minus ka dq by dt. That's what we are getting. If we solve this equation carefully, if we take Q on one side, you will have dq divided by Q on one side, that is equal to minus ka dt divided by R into C. That's what we are getting. And now let us understand this equation carefully. Here in the numerator you have dq, which is charge, and denominator is q, again charge. So LHS is charge upon charge, coulomb upon coulomb cancel. So LHS doesn't have any unit. So RHS will also don't have any unit. RHS में numerator is dt, which is time, and denominator is RC. So RC का unit भी time का होगा, तो RC को फिजिक्स में क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट ऑफ अ डिस्चार्जिंग RC सर्किट। RC will be called upon as time constant of a discharging RC circuit, denoted by tau. And tau will be equal to RC. And SI unit of RC
SI unit of RC will be in seconds. So what is the equation बच्चे you have got? You have got dq upon q is equal to minus dt divided by tau. Tau is the time constant of the circuit, which is equal to RC. Now I will integrate this equation. This is the third equation for me. And but I'll integrate it. How? What are the limits? Q का initial value was Q naught. Say general Q is equal to Q तक. And time का initial value was 0. Say general T is equal to T तक. Take care of this thing. Charge was Q naught initially और अब general Q और time 0 से general T तक. Integrate कर दो बच्चे. What you'll have? LHS will be ln of Q. So ln of Q, and if I put the limit Q naught to Q, so ln Q minus ln Q naught, that is equal to RHS में क्या आएगा? माइनस का 1 by tau, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dt will be t, so just multiply this by t. Integral dt from 0 to t, that will be t. So what you are getting here? You are getting ln of Q upon Q naught, ln A minus ln B is ln A upon B, is equal to minus का t by tau. That implies बच्चे Q का वैल्यू आ रहा है Q naught into e raised to the power minus t by tau. Q will be Q naught into e raised to the power minus t by tau. This is Q as a function of time for a discharging RC circuit. जो सर्किट मैंने आपको दिखाया है ना, डिस्चार्जिंग RC सर्किट, उसमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस इक्वेशन को फॉलो करेगा. अब इस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में लिखता हूं, बताओ क्या प्रॉपर्टीज होंगी. लेट अस ट्राई टू प्लॉट Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. प्लॉट करें बेटा, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बताओ, at t is equal to 0, if you put t is equal to 0, what is the value of Q you are getting? Q naught. तो चार्ज का इनिशियल वैल्यू क्या था? Q naught. And now as time will increase, e raised to the negative power will increase, so function will exponentially decay. And all of us understand that when t will tend to infinity, the charge will tend to 0, because when time tends to infinity, this power becomes e raised to the power minus infinity, and e raised to the power minus infinity will tend to 0. तो जब इनफाइनाइट टाइम तक आप जाओगे तो चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? अच्छा, इसका मतलब डिस्चार्जिंग सर्किट में भी पूरा चार्ज डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है? इनफाइनाइट. कमाल की बात है कि अगर रेजिस्टर ना होता सर्किट में, ये बंदा रेजिस्टर, इफ दिस गाय वाज नॉट हियर, तो ये चार्ज इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता. लेकिन अगर रेजिस्टर आ गया तो उसने प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया कि पूरा डिस्चार्ज होने में इसको कितना टाइम लग गया? इनफाइनाइट. वैसे इस बात को लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो बेटा, जैसे थोड़ा सा चार्ज डिस्चार्ज होगा ना, तो वोल्टेज यहां कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इसका Q बाय C है और इस वोल्टेज की वजह से रेजिस्टर से करंट जा रहा है. तो जब डिस्चार्ज होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना, जब डिस्चार्जिंग होगी थोड़ी सी तो वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो डिस्चार्ज और कम होगा. लेकिन डिस्चार्ज होगा तो चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो वोल्टेज और कम होगा, तो करंट और कम हो जाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज कैपेसिटर का कम होता जाएगा, और वोल्टेज कम होता जाएगा तो सर्किट में यानी रेजिस्टर में करंट कम जाएगा, और करंट अगर कम जाएगा तो चार्ज का कम होना भी कम होगा. मतलब चार्ज कम होगा बट कम कम होगा. मतलब द डिक्रीज ऑफ चार्ज विल बी लेस बिकॉज द करंट इज स्मॉल. सो दैट्स व्हाई शुरू में अगर आप देखो तो चार्ज जल्दी जल्दी कम हो रहा है, जल्दी जल्दी कम हो रहा है, लेकिन बाद में बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उसको कम करवाने के लिए जो वोल्टेज है वो खुद इतना कम हो गया है कि बचे हुए चार्ज को डिस्चार्ज करने में हमें कितना टाइम लग जाता है? इन्फिनिटी. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट कि भाई जिस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना है उसका ही वोल्टेज उसको डिस्चार्ज करता है, और जब वो डिस्चार्ज होने लगता है तो वोल्टेज कम होने लगता है, तो डिस्चार्ज करवाने वाले बंदे की ताकत कम होने लगती है, तो डिस्चार्ज भी फिर स्लगिश हो जाता है,
स्लो हो जाता है, इसलिए फुल्ली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है बेटा? इनफाइनाइट, राइट। एक चीज जरूर नोट कर सकते हैं, टाउ टाइम के बाद, ये जीरो टाइम है यहाँ, टाउ टाइम के बाद क्या होगा? तो यू कैन सी, इफ यू पुट t is equal to tau in this equation, what will be the value of charge? It is q naught e raised to the power minus tau upon tau is -1, so basically q naught upon e, और 1 upon e बेटा कितना होता है? 0.37, so it is 0.37 q naught, यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये 0.37 क्यू नॉट हो जाएगा। यानी अगर इसे मोटे तौर पे बोलें तो आप ये बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम चार्ज था डिस्चार्जिंग सर्किट का, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसकी वैल्यू 37% ऑफ क्यू मैक्स हो गई, राइट। सो एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये 37% हो गया। और ऐसे अगर हम चलते जाएं, यहाँ 2 टाइम कांस्टेंट ले लें, तो ऑल ऑफ यू कैन सी ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये 0.37 का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट हो जाएगी। मतलब जितना 0.37 क्यू नॉट आया था ना, उसका भी 0.37, मतलब एक टाइम कांस्टेंट में मैक्सिमम का 37%, फिर एक और टाइम कांस्टेंट में जो वैल्यू आई है 37%, उसका भी 37%, और फिर एक और चलोगे उसका फिर 37%, एंड दैट इज हाउ द सर्किट विल कीप ऑन डिके। तो हर एक टाइम कांस्टेंट में अपनी वैल्यू का वो 37% रह जाता है। दैट इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। अब ये तो हो गया भाई चार्ज का डिक्रीज। अब बात करते हैं करंट की। तो बेटा करंट क्या लिखा था मैंने? I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, और अब Q तो आ गया है, तो क्या हम करंट की पढ़ाई कर सकते हैं? यस। सो नाउ आई कैन से अबाउट I was written as minus dq by dt, rate of decrease of q, तो इसको लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ, और अब बेटा q एज फंक्शन ऑफ टाइम तो मैंने डिराइव कर लिया है, क्या था? q नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग था। अब जरा डिफरेंशिएट करो इसको, माइनस का माइनस, q नॉट बाहर आ गया, d by dt of e raised to the power minus t by tau, so minus 1 by tau पावर वाला बाहर आ जाएगा, और e raised to the power minus t by tau और आ जाएगा, right? So what we are basically going to get, this tells me this is q naught upon tau, tau को लिख सकता हूं rc e raised to the power minus t by tau। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर करंट की आप बात कर रहे हो, करंट का फंक्शन आप देख रहे हो, तो आपको ये मिल रहा है, दिस इज करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्जर्व दैट एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज q नॉट बाय rc, द वैल्यू ऑफ करंट, एंड एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस वैल्यू इज अगेन 0, एंड एट t इज इक्वल टू टाउ e रेज टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। सो q नॉट बाय rc का 0.37, 37% of this value. If this value you are calling upon as I naught, एक टाइम कांस्टेंट में कितना रह गया? It is 37% of I naught. So basically, if I draw the current versus time graph, कुछ सिमिलर सी प्रॉपर्टी आ रही है, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आ रहा है, इसका इनिशियल वैल्यू I naught आ रहा है, इसका भी वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना आ रहा है बच्चे? 37% ऑफ I naught. सो वही बात, इफ दिस इज I max, if this value is I max, this value is 37% of I max, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अगर मैं 2 टाउ ले लूंगा, तो दैट वैल्यू अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, ये वैल्यू इससे पहले वाली का फिर 37%, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा। बड़ी अच्छी बात है कि आई नॉट की वैल्यू क्यू नॉट बाय आरसी कैसे एक्सप्लेन करें। ग्राफ तो समझ में आ गया, करंट कम होता जा रहा है, और होना भी था, क्योंकि अगर चार्ज कम होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा, क्यू अपॉन सी, और वोल्टेज अगर कैपेसिटर का कम होगा तो रेजिस्टर का वोल्टेज भी कम होगा, क्योंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज सर्किट में सेम है, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो करंट भी डिकेइंग है,
और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये आई नॉट कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो बेटा, आई नॉट का एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दे सकता हूं कि एट t is equal to 0, when you started this problem at t is equal to 0, your capacitor was having q naught and minus q naught, and there was a resistor in the circuit, R लगा हुआ था. So basically this capacitor at t is equal to 0 was behaving like a battery of voltage q naught by c. भाई अगर इसका चार्ज q naught माइनस q naught है तो इसका वोल्टेज q naught by c है, और q naught by c का वोल्टेज अगर इसको मिलेगा तो एक करंट तो I naught चलेगा ही बेटा, इस सर्किट में I naught चलेगा, and I naught can be written as voltage of capacitor which is q naught by c divided by resistance. ओम्स लॉ लगा दिया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. रिमेंबर, जो वोल्टेज कैपेसिटर का है प्लस माइनस वही वोल्टेज रेजिस्टर का है, दोनों पैरेलल में है. इसीलिए प्रीवियस पेज पे आई नॉट की वैल्यू क्या आई है, क्यू नॉट बाय आर सी, वो एक्सपेक्टेड भी था वही आएगी. एक और चीज, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर में कुछ फील्ड लाइंस हैं प्लस क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट की तरफ, और इस फील्ड में इसकी एनर्जी स्टोर्ड है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0, ये कितनी है बेटा, हाफ ऑफ q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय c है. यू कैन सी दैट बिकॉज चार्ज इज q नॉट. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना है, ये तो बच्चे जीरो है, क्योंकि इंफिनिटी के बाद हमने चार्ज का ग्राफ बनाया था. आफ्टर इनफाइनाइट टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर will tend to 0, and if charge tends to 0, the energy stored in that capacitor will also tend to 0. तो एक बात समझ में आई कि यार इतनी एनर्जी थी कैपेसिटर में, बाद में इतनी रह गई, तो एनर्जी गई कहां. सो वी कैन वेरीफाई व्हाट, दैट जो हीट जनरेट हुई है रेजिस्टर में 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम के बीच में, वो इस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, यानी वो भी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी के इक्वल होना चाहिए. ये बात मैं लॉजिकली बोल सकता हूं, भाई कैपेसिटर में इतनी एनर्जी थी पहले हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, और बाद में कैपेसिटर में 0 हो गई, तो पूरी एनर्जी कैपेसिटर की बर्बाद हो गई. कहां बर्बाद हुई भाई, कैपेसिटर से जब करंट या चार्ज धीरे धीरे निकला रेजिस्टर के थ्रू, तो रेजिस्टर ने डी एच करके हीट बाहर फेंकी होगी. तो बच्चा कहता है सर रेजिस्टर की हीट और कैपेसिटर की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए. ये बात कॉन्सेप्चुअली ठीक है, बट कैन वी वेरीफाई दिस स्टेटमेंट? नाउ लेट मी ट्राई टू प्रूव इट दैट दिस इज करेक्ट. सो if I want to derive the heat generated from resistor from 0 to infinity time, what is the formula? It is integral of I in resistor का square, I square R into dt from 0 to infinity. What is I square R? The power across the resistor, and power into dt is the heat, dH, और dH को इंटीग्रेट करेंगे टोटल हीट आ जाएगी. अब बच्चे इंटीग्रल टाइम पे चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 टू t टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब करंट रेजिस्टर का कैसे लिखोगे? तो बच्चे आपने करंट का फंक्शन डिराइव किया था, जो it था ना, वही रेजिस्टर का करंट था. उसका फंक्शन क्या था, I नॉट e raised to the power minus t by tau, where I naught is q naught by RC. I naught की वैल्यू q naught by RC आई थी, बट फंक्शन क्या था, I naught. तो I naught e raised to the power minus t by tau इस टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय dt. अगर ये इंटीग्रेट हो जाए तो रिजल्ट आ जाए. एंड हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? देखो बेटा, इसमें आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल रह जाएगा ई रेस टू दी पावर, स्क्वायर कर रहे हो ना, माइनस का 2t बाय टाउ डी टी, लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी. एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रल? देखो बेटा क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर तो अलग आ गया, अब ई रेस टू दी पावर टर्म का इंटीग्रल सेम आ जाएगा, माइनस 2t बाय
टाउ, और टी का कोफिशिएंट क्या है -2/टाउ, उससे डिवाइड हो जाएगा, है चेन रूल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और बाद में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब बेटा देखो, जब इन्फिनिटी लिमिट डालोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0, -0 लिमिट डालोगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ये टर्म बन जाएगा 1, और नीचे है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आ जाएगा टाउ/2, तो आई नॉट स्क्वायर आर टाउ/2, यही आ रहा है, 2/टाउ का जो टर्म था टाउ/2 बन जाएगा। अब बेटा एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट क्या था, आई नॉट वॉज Q0/r इंटू सी का स्क्वायर इंटू आर इंटू टाउ, टाउ का फॉर्मूला क्या है बेटा RC डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बेटा क्या आ रहा है रिजल्ट, Q0 स्क्वायर का Q0 स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय, यू कैन सी आर स्क्वायर न्यूमरेटर का नीचे कट जाएगा, नीचे का सी स्क्वायर और सी एक कट जाएगा, सो Q0 स्क्वायर बाय 2C आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। आई शुड राइट हियर हेंस प्रूव्ड। तो प्रीवियस पेज पे मैंने यही लिखा था कि डेल्टा एच जो रेजिस्टर से निकलेगा 0 से इनफाइनाइट टाइम में, you have to check or prove or verify that that is half Q0 square divided by C. And here I have verified that my result is Q0 square by twice of C. So it is proved कि रेजिस्टर से जो हीट निकली है धीरे धीरे, वही कैपेसिटर के अंदर की टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, और होनी भी चाहिए यार, और तो कोई रास्ता ही नहीं था। कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी थी वो बाद में पूरी खत्म हो गई, तो निकली कहां होगी, वो रेजिस्टर से ग्रेजुअली मूव आउट की होगी। तो हमें Q एस फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, हमें I एस फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, हमने हीट डिराइव कर ली दोनों मेथड से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये वाला हमारा बन गया। अब हम इस क्वेश्चन में, इस केस में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर अब आप एक, इसको मैं ले रहा हूं एक्सटेंशन की तरह, एक्सटेंशन टू द प्रॉब्लम। व्हाट इज द एक्सटेंशन टू द प्रॉब्लम? अब मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर जो सवाल में था, जिसके पास Q0 माइनस Q0 है, सर्किट में एक रेजिस्टर है जैसे पहले था, स्विच लगा दो जैसे पहले था, और एक कैपेसिटर यहां पर और लगा दो, एंड नाउ क्लोज द सर्किट। द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव डन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज कि मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया जो अनचार्ज है, जिसका चार्ज 0 0 है, लेकिन कैपेसिटेंस सेम है इसका, and I have closed the switch closed at t is equal to 0. अब इस सिस्टम में मैं पता लगाना चाहता हूं, if this is the initial state, what will happen in this circuit in the final state? फाइनल स्टेट का मतलब होता है स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट आरसी सर्किट में कब आती है, इनफाइनाइट टाइम के बाद। अब देखो बेटा, इसका फाइनल स्टेट तो बड़े आराम से बताया जा सकता है, लॉजिकली बताया जा सकता है। देखो फाइनल मतलब वो स्टेट है जब कैपेसिटर्स ये बोले कि हमें जितना चार्ज रखना था स्टेबली हमने रख लिया, और ऐसा तब संभव है जब करंट इस सर्किट में बंद हो जाए, क्योंकि अगर करंट चलता रहेगा तो चार्ज बदलता रहेगा, और अगर करंट बंद हो गया तो ऊपर वाली ये प्लेट और नीचे वाली इस प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल इंफिनिटी में फाइनल स्टेट पे सेम हो जाएगा, और राइट प्लेट और राइट प्लेट का सेम हो जाएगा, और कैपेसिटेंस वैसे ही सेम है, तो चार्ज भी सेम होना चाहिए। अब वो सेम चार्ज क्या होगा, तो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लगा देते हैं। देखो एक लूप देखो मैंने बनाया, ये लूप ध्यान से देखो, इस लूप में दो प्लेट्स आ रही हैं, तो जब भी चार्ज चला होगा ना, तो ये चार्ज आपस में शेयर हो सकता है, और बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता भाई, कोई वायर ही नहीं आ रहा है इस लूप के अंदर। तो अगर ये शेयर हो सकता है और फाइनली पोटेंशियल सेम होना है, तो आधा आधा बैठेगा। इसका मतलब बेटा फाइनल स्टेट में अगर यहां -Q0/2 है, तो नीचे भी कितना बैठा होगा, -Q0/2, और अगर यह माइनस बैठा है तो यहाँ +Q0/2 बैठा होगा, और फाइनली इस पे कितना बैठा होगा, वो भी +Q0/2, और फाइनल स्टेट में रेजिस्टर आपको दिखेगा बट वो रिडंडेंट हो जाएगा, यानी फाइनल स्टेट पे जो करंट इन द सर्किट है इंफिनिटी में वो 0 हो जाता है। ये सी। अच्छा इधर वाला भी आप लूप बना सकते हो, इधर वाला भी लूप बना सकते हो, और इन दो प्लेट्स का चार्ज भी
हम कंजर्व कर सकते हैं। आधा आधा क्यों कर दिया? बाय सिमेट्री इंफिनिटी पे पोटेंशियल सेम करना है तो चार्ज भी सेम करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो इंफिनिटी पर ये स्टेट है और इनिशियल स्टेट ये है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इस बार इस रेजिस्टर से कितना हीट निकला, व्हाट इज द हीट जनरेटेड फ्रॉम द रेजिस्टर इन 0 to इनफाइनाइट टाइम। मैं हीट वाला ही सवाल कर रहा था तो मैंने उसी पे थोड़ा सा एक्सटेंशन डाल दिया। तो बेटा इस बार लॉजिक से बताओ, अब मैंने फंक्शन तो निकाले नहीं है, मैंने क्यू एस फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकाला, आई एस फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकाला, तो मैं इंटीग्रेट करके हीट फाइंड नहीं कर सकता था। तो इस बार तो एक ही मेथड है मेरे पास, और वो मेथड क्या है? जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और जितनी फाइनल है, उसमें से वो जितनी कम हुई वो हीट के फॉर्म में निकल गई। अब बेटा बताओगे इनिशियल कितनी है? इनिशियल तो इस कैपेसिटर के पास है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। और बेटा फाइनली कितनी है? फाइनली दोनों के पास है, तो दो लोगों के पास है कितनी कितनी? हाफ ऑफ, दोनों के पास क्यू नॉट बाय टू है, तो क्यू नॉट बाय टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी कर देना बेटा। हाफ ऑफ क्यू नॉट बाय टू का स्क्वायर अपॉन सी, ये फाइनली एक कैपेसिटर की आ जाएगी, और ऐसे दो बंदे हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देना, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म आ रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, और ये टर्म आ रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाय फोर सी, तो आंसर आपका क्यू नॉट स्क्वायर बाय फोर सी आ जाएगा। यू विल गेट योर आंसर विच इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय फोर सी। What I have done in the problem is I have shown you that एक आरसी सर्किट अगर मैं नया बना दूं, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था उससे थोड़ा डिफरेंट, उसमें भी हीट निकलवा सकता हूं आपसे लॉजिक से, बिना इंटीग्रल के। हाँ, इस क्वेश्चन को इंटीग्रल से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी इस क्लास में मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था। हीट अगर निकालनी है बिना इंटीग्रल के, वो भी निकाली जा सकती है बिना फंक्शन। सो दैट्स इट बेटा। In today's class, I have taught you how to discuss a discharging RC circuit, उसका Q versus time, उसका I versus time, ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं। Now before I end this session, दो चीजें दिमाग में रखो। अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रहा है बाय द नेम ऑफ कॉम्बैट। हर संडे को आपको ये टेस्ट मिलता है 11 AM पे, राइट? और आप फटाफट इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर लीजिए, एंड टू अनलॉक इट यू हैव टू यूज माय एडुकेटर कोड विच इज APSJE। क्या फायदा है इसको देने से? स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, सब्सक्रिप्शंस भी आपको फ्री मिल सकते हैं अगर आपने अच्छी रैंक फोड़ी, और आपको पार्टिसिपेंट्स के लिए लकी गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट भी हैं, जैसे फिटबिट, JBL स्पीकर, अमेजॉन वाउचर्स एंड iPad। तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा बेटे, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो फॉर 12, 18 और 24 months, you will be given a rebate of 14%, 30% and 34% respectively if you use my referral code APSJEE while purchasing the subscription। तो परचेज करो ताकि आप टॉप लेवल कंटेंट को टॉप लेवल एडुकेटर से पढ़ सको, राइट? यहाँ भी आप देख सकते हो फॉर 12, 18 and 24 months, if you purchase the plus iconic subscription, you will be given a rebate of 54, 62 and 67% respectively if you are using my promo code which is APSJEE। Kindly do it ताकि आप टॉप लेवल कंटेंट को फटाफट पढ़ सको। आइकॉनिक प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस। और अगर डाउट पूछना है अनअकैडमी के ऐप के थ्रू, तो क्वेश्चन की फोटो लेके डाल दो, यू विल गेट अ सोल्यूशन इंस्टेंटेनियसली, राइट? Fine students, follow me on the Unacademy platform through my profile ID which is @avadhesh.iatk, है ना? और जो जून में बैचेस स्टार्ट हुए हैं, इनकी भी डेट्स को आप मार्क कर लो कैलेंडर में। 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, 13 के बच्चे, और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स सब्सक्रिप्शन परचेज करके यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द बैचेस। फटाफट कर लो क्योंकि अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं निकला है और आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। अच्छा, देयर इज अ समर टेस्ट कार्निवल इन द सिस्टम गोइंग ऑन फॉर मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विजर्ड्स, और जल्दी से टेस्ट कार्निवल में आ जाओ। तो कैलेंडर से अपनी डेट्स मार्क कर लेना और इन टेस्ट्स को एंजॉय करो, टॉप लेवल कंटेंट को एंजॉय करो, और जेई एडवांस को फोड़ो विद द हेल्प ऑफ IIT JEE बिगेस्ट समर टेस्ट कार्निवल। और जो बम्पर ऑफर है
सब्सक्रिप्शंस का 12, 24 और 3 महीनों का अभी ले लो, ताकि आपको 3, 4 और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाए यूजिंग माई प्रोमो कोड APS JEE। अच्छा, मेरा बैच एक स्टार्ट हुआ है फॉर ड्रॉपर्स फ्रॉम 16 जून। अदर देन मी देर आर अदर टॉप एडुकेटर्स ऑल्सो इन द बैच। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं इस साल और अगली साल जेई लिखेंगे, उनके लिए बैच है, सो काइंडली ज्वाइन इट। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड जो डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट मैंने पढ़ाया है और उसका एक छोटा सा ट्विस्ट बताया जहां पर हीट बिना इंटीग्रेशन के निकल जाएगी, तो उस ट्रिक को समझो जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी मैंने लगाया है। तो फटाफट ये अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अनअकैडमी एटम्स पे ऐसे फंडू कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते रहो। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।